Hello, my dear student of Standard 6th, and welcome to you once again. And right now, we are going to start chapter number 2, Journey from Primitive Man to Settled Life. Okay, so let's begin without wasting further time. Hmm. So here is your first question, that is the MCQ part, and there are total 10 MCQ that we are going to discuss. 4 are there in our textbook and 6 I have taken from the reference book. Now let us go through the uh, first question. How was primitive man's life? Okay, so they are asking कि पहले के primitive man's की life कैसी थी? Okay, your option are nomadic life, settled life, urban settlement life, rural settlement life. Well, the answer is that I had bold and underline it, and that is the nomadic life. Okay, second one. Which weapon was not used by primitive man टू हंट एनिमल्स? सो एनिमल्स को हंट करने के लिए कौन से वेपन्स का यूज़ नहीं किया जाता था, बेसिकली उन्होंने ये पूछा है. सो गन. राइट नाउ इन द मॉडर्न डेज वी आर यूजिंग गन, सो गन इज द करेक्ट आंसर. वी आर नॉट गोइंग फॉर द अदर ऑप्शन. Straight away, let us move to the third number. In which state is भीमबेटका situated? So भीमबेटका जो प्लेस है वो कहाँ पर है? Well, answer is मध्य प्रदेश. Other option are Gujarat, Bihar and Uttar Pradesh are incorrect. Okay. Here is your fourth MCQ. Which activity were not started by primitive men? So primitive men ने इनमें से क्या कौन सी एक्टिविटी नहीं की थी? Well, your option are farming, cattle rearing, grain storage and industry. Well, industry is the right answer. ये तो मॉडर्न वर्ल्ड इंसान ने किया है. 5 number. Which stage of human beings is called the hunters and gatherers? Okay, तो कौन सी स्टेज को हंटर्स एंड गैदरर्स कहा जाता है? द प्रिमिटिव मैन, द सेटल मैन, द ह्यूमन्स ऑफ इंडस वैली, द ह्यूमन ऑफ वैदिक एज. वेल, द करेक्ट आंसर इज द प्रिमिटिव मैन. ओके, आगे बढ़ते हैं. सो व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द फूड ऑफ प्रिमिटिव मैन? इनमें से कौन सी चीज़ें प्रिमिटिव मैन के फूड में हम लोग नहीं गिनेंगे? वेल, रूट्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, मीट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. सो यूजुअली आंसर आएगा सी, ग्रेन्स. ओके, प्रिमिटिव मैन के बाद में ही उन्होंने ग्रेन्स ग्रो करना स्टार्ट किया था. नंबर 7. Which was the invention that brought change in the life of primitive man? Well, your correct answer is will. Okay. Who was the first companion of the settled life of human beings? Well, the correct answer is dog. Okay. And what could not be included in the wide changes found in the settled life primitive people? Well, you will find the correct answer is education. Where is the Mehergarh currently located? Of course, it is in Pakistan right now. Okay, let us move ahead. And in this slide, we are going to discuss the 10 fill in the blanks. Okay, the primitive used weapons made up of stones, bones, woods and implements. तो यूजुअली वो लोग पहले के ज़माने के जो लोग थे वो स्टोन्स का, बोन्स का एंड वुड्स का यूज़ करते थे. यहाँ पर आपको स्टोन पूछा जा सकता है, एंड डेट आई हैड बोल्ड एंड अंडरलाइन इट ऑल्सो. बट फ्रेंड्स रिमेंबर, आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी जितने भी आंसर्स की स्पेलिंग है अच्छे से याद करनी है. अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आपका मार्क्स कट सकता है. मूव टू द सेकेंड वन. Natural caves have been found in the Vindhya mountain ranges in central India. Okay, so remember, जो नेचुरल केव्स है वो विंध्या माउंटेन्स में पाई गई है, जो इंडिया के सेंट्रल इंडिया में पड़ता है. नाउ nearly 500 painting drawn by primitive men have been found from the भीमबेटका caves. so भीमबेटका caves में से बेसिकली कितनी पेंटिंग्स पाई गई है? वेल, द करेक्ट आंसर इज 500. About 12,000 years ago, there were wide changes in the atmosphere around the world. So आज से 12,000 साल पहले एटमोसफियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ था. हाँ, sorry for that. And now the primitive man had learned to make wheel from the tree trunk and its thick wood. Okay, so यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि पहले के इंसान ने जो व्हील बनाना सीखा था
वो ट्री के ट्रंक से और बड़े मोटे से लकड़ी से बनाना सीखा था। नंबर 6, प्रिमिटिव मैन स्टार्टेड टू मेक अर्थन पोट्स टू स्टोर ग्रेन्स। तो पहले बड़े बड़े मटके हुआ करते थे जिसमें वो लोग अपना अनाज स्टोर किया करते थे। बुझाउम एंड गुफक्रान आर द एंशिएंट प्लेसेस लोकेटेड इन कश्मीर स्टेट्स। ओके, सो ये दो जगह है बुरझौम और ये गुफकरन। सो ये जगह यूजुअली हमारे कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में है। नाउ प्रिमिटिव मैन मेड बैंड्स इन रेक्टेंगुलर हाउसेस टू स्टोर ग्रेन्स। सो एक तरह का रेक्टेंगुलर हाउस का फॉर्मेशन वो लोग बनाते थे जिसमें वो लोग अपनी ग्रेन्स को स्टोर किया करते थे। द रिमेन्स ऑफ द डेड बॉडीज ऑफ चिल्ड्रन हैव बीन फाउंड फ्रॉम द इनाम गांव ऑफ महाराष्ट्र। तो डेड बॉडीज के साथ साथ बच्चों की बॉडीज भी पाई गई है। डेट इज फाउंड इन द इनाम गांव। प्रिमिटिव मैन यूज स्टोन टू ग्रो ग्रेन्स। तो पहले के इंसान स्टोन का इस्तेमाल किया करते थे ग्रेन्स को ग्रो करने के लिए। ओके, सो इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रू और फॉल्स एंड मैच द फॉलोइंग। सो फर्स्ट वन, प्रिमिटिव मैन स्टार्टेड वायलेंट एनिमल विद द बिगिनिंग ऑफ द सेटल लाइफ। तो पहले हम लोगों ने डोमेस्टिक एनिमल्स को पाला था, स्पेशली डॉग, काउ, बफेलो। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बन जाता है फॉल्स। सेकेंड, स्टोन इम्प्लीमेंट वेर यूज इन द स्टोन एज। तो स्टोन एज में स्टोन की चीज़ों का इस्तेमाल होगा, तो इसमें तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता है, ट्रू है। आगे, प्रिमिटिव मैन हैज़ ड्रॉन पिक्चर्स ऑफ लायन एंड टाइगर एट भीमबेटका। सो उन्होंने भीमबेटका की केव्स में लायन और टाइगर का फोटो बनाया था, जो गलत है। ओके, उन्होंने क्या बनाया था वो हम लोग आगे देखेंगे। आगे, नेचुरल कलर हैव बीन यूज्ड इन केव्स ऑफ भीमबेटका टू ड्रॉ पिक्चर। तो उन लोगों ने पिक्चर ड्रॉ करने के लिए नेचुरल कलर का यूज़ किया था। सो सही बात है, ट्रू। प्रिमिटिव मैन कुक फूड इन द मेटल यूटेंसिल। वेल, ये एक बात गलत है, फॉल्स आएगा। आगे बढ़ते हैं, मैचिंग। आपको मैचिंग करना है वीट, बार्ली, सीप, गोट एंड स्टोन इम्प्लीमेंट्स। ये हमको बुझौम करल में फाइंड आउट हुआ था, जो अभी कश्मीर में देखा था हमने रिसेंटली। राइस एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स, मेहरगढ़ विच इज़ राइट नाउ इन पाकिस्तान। ह्यूमन कॉलोनीज एंड राइनोसोर्स, तो ये लालगंज में आएगा, है ना। लखनऊ एंड वीट, एंटिल, डॉग एंड पिट्स एंड हाउसेस इनाम गांव में आएगा। बफेलो, बुल एंड इम्प्लीमेंट्स चिरांड में आएगा। वाह, यहाँ पे आंसर इन शॉर्ट है, बट पहला आंसर देख के लगता नहीं किसी भी एंगल से ये शॉर्ट है। एनी हाउ, वाई डिड द नीड ऑफ सेटल लाइफ अराइजेस। इंसान पहले क्या करता था, एनिमल्स के पीछे भागता रहता था। तो उसकी लाइफ एक तरह से नोमेडिक लाइफ थी, वो कहीं पे भी एक जगह टिकता नहीं था। जहाँ पे उसका शिकार एनिमल जाते थे वहाँ पे उसको घूमना पड़ता था। पर तभी कुछ ऐसा हुआ कि उसको अब एक जगह टिक के रहना पड़ा। क्यों रहना पड़ा, लेट्स सी। द प्रिमिटिव मैन लेड इनिशियली नोमेडिक लाइफ इन सर्च ऑफ फूड। सो बेसिकली ही इज सर्चिंग फॉर द फूड एंड ही इज लिविंग द नोमेडिक लाइफ. About 2000 years ago, wide changes in the atmosphere around the world led to the vegetation and grassroot region. So आज से 12,000 साल पहले जब टेम्परेचर बढ़ता है अर्थ का, तो सब जगह वेजिटेशन ज़्यादा होने लग जाता है, ग्रास ज़्यादा उगने लग जाती है. पॉइंट नंबर 3, एज ए रिजल्ट ग्रेजुअली एक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टेड. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एग्रीकल्चर की शुरुआत होने लगी एंड एनिमल्स को पाला जाने लगा, उनके एनिमल हस्बेंड्री हम लोग करने लगे. प्लेसेस कुड नॉट हैव बीन लेफ्ट ड्यू टू एग्रीकल्चर बिकॉज इट टेक टाइम टू ग्रो. अब ये नॉर्मल सी बात है कि हम लोग अगर यूजुअली क्या होता है कि हमने अगर कोई क्रॉप ग्रो की है तो एटलीस्ट उसके कटने तक हम लोग उसको छोड़ के जा नहीं सकते. तो ऐसा उनके साथ भी हुआ. एंड सो दे स्टार्टेड टू लिव सेटल लाइफ. अब उन लोगों ने, उनको पता है कि यहाँ पे थोड़े दिन तक रहना है, तो उन्होंने अपने तंबू वम्बू जो भी बांधे होंगे, गुफा उफा, एंड फिर वहाँ पे एक सेटल लाइफ उन लोगों ने जीना स्टार्ट कर दिया. वेल, रेफरेंस बुक तो बहुत बड़ा आंसर था, सो आई थिंक इतना इनफ है आंसर इन शॉर्ट के लिए. यूज ऑफ फायर ब्रॉट अबाउट विच टाइप ऑफ चेंजेस इन द ह्यूमन लाइफ. जैसे ही हम लोगों ने आग का इस्तेमाल करना शुरू किया तो हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिले.
Well, the use of fire brought a revolutionary change in the life of the primitive man. After the discovery of fire, primitive man started using fire in the activity described below. So usually फायर आने के कारण इंसान की ज़िंदगी बहुत हद तक काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी थी, है ना। और इसके अलावा और इंसान उस आग से और भी बहुत सारी एक्टिविटी किया करता था, जैसे कि नंबर 1, फॉर रोस्टिंग मीट एंड प्रे एनिमल्स। ओके, सो जिस जिस भी एनिमल का वो शिकार करता था उसको गर्मा गर्म करके खाता था। एनी हाउ, फॉर लाइटिंग अप देयर केव, अपनी केव में अंधेरा ना हो तो उसके लिए वो लाइटिंग करता था। टू स्केयर अवे द वाइल्ड एनिमल्स बाय लाइटिंग फायर इन फ्रंट ऑफ द केव्स, वो अपने गुफा के मुहाने पे, यानी जहाँ पे उसकी गुफा स्टार्ट होती है वहाँ पे वो नॉर्मली आग जलाता था, ताकि वाइल्ड एनिमल्स उसको क्रॉस करके उनकी गुफा में ना आए। तो गुफा एक तरह से जो फायर है वो गुफा में एनिमल्स को घुसने से भी रोकती है। एंड टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड, ठंड के मौसम में तो बाप रे बहुत मज़ा आता होगा। यार हाँ, इसको बोलते हैं आंसर इन शॉर्ट। वहाँ पे तो मजाक किया था फर्स्ट स्लाइड में। एनी हाउ, विच टाइप ऑफ क्रॉप्स वेर ग्रोन बाई प्रिमिटिव मैन, तो प्रिमिटिव मैन कौन सी क्रॉप ग्रो किया करता था? द क्रॉप लाइक वीट, बार्ली, मिलेट, राइस, लेंटिल एक्सेट्रा वेर ग्रोन बाय द प्रिमिटिव मैन। वेरी सिंपल। 4 नंबर, विच एनिमल वेर रियर्ड बाई प्रिमिटिव मैन, तो कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनको प्रिमिटिव मैन ने पालना शुरू किया था, डोमेस्टिकेटेड किया था? सो द एनिमल्स लाइक डॉग, sheep, गोट, काउस, बफेलो एक्सेट्रा वेर रेड बाय द एनिमल्स। सो यहाँ पर जो एनिमल्स के नाम दिए गए हैं यू आर सपोज टू बी रिमेंबर। विच चीज नाउ, ये 4 क्वेश्चन तो यूजुअली आपके एक्सरसाइज की बुक में थे, 5th क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा लिया है। व्हाट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रिमिटिव मैन कॉल, प्रिमिटिव मैन जो इनिशियल स्टेज था उसमें उसको हम लोग क्या कहेंगे इंसान को? द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रिमिटिव मैन वेर कॉल्ड हंटर्स एंड गैदरर्स, शिकार करते थे और इकट्ठा करते थे। ओके सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ से मैं यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन उठाए हैं। ओके, हाउ डिड द प्रिमिटिव मैन यूज एनिमल, तो प्रिमिटिव मैन था वो एनिमल्स का किस तरह से इस्तेमाल किया करता था, बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो पॉइंट नंबर 1, व्हेन प्रिमिटिव मैन लिव इन अ लाइफ ऑफ हंटर एंड गैदरर्स, दे हंटेड द एनिमल्स लाइक डियर, शीप, गोट एंड यूज देम एज फूड। जब इंसान प्रिमिटिव लाइफ की स्टेज पे था तो यूजुअली वो हंटिंग करता था और खाने को इकट्ठे करता था। यूजुअली वो डियर, शीप एंड गोट जैसे एनिमल्स का शिकार किया करता था। दे यूज देयर स्किन टू कवर देयर बॉडी, ऊपर से जो एनिमल्स की स्किन होती थी वो अपनी बॉडी पे रखता था ताकि ठंड ना लगे। एंड दे मेड फ्रेंड विद एनिमल्स, द डॉग बिकम द फर्स्ट कंपेनियन। ओके, फिर उसने कुछ एनिमल्स को अपना दोस्त बना लिया जिसमें शुरुआत डॉग से हुई। दे मेड सम एनिमल्स एज देयर पेट, एज ए रिजल्ट द कैटल रेयरिंग एक्टिविटी वॉज स्टार्टेड। इस तरह से उसने क्या किया, बहुत सारे एनिमल्स को अपना पेट बनाया और इस तरह से कैटल रेयरिंग का कार्यक्रम शुरू हो गया। सो क्वेश्चन क्या था कि हाउ डिड प्रिमिटिव मैन यूज एनिमल, तो उसने एनिमल्स का इस्तेमाल किस तरीके से किया। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि वो उनको एज ए फूड यूज़ करता था, कौन सा एनिमल था, इस तरह से वो यूज़ ले रहा था। दूसरे में उनकी स्किन एनिमल इंसान के बॉडी को कवर करने में काम आती है। थर्ड में उसमें बताया गया है कि डॉग उसका पहला फ्रेंड बनता है। एंड फोर्थ पॉइंट में यहाँ से फिर कैपिटल रेयरिंग का जो वर्क है वो शुरू हो जाता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। स्टेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रिमिटिव आफ्टर द सेटल लाइफ, तो जैसे इंसान हंटर और गैदरर से जब एक सेटल लाइफ जीना शुरू करता है तो उसकी एक्टिविटी बहुत हद तक अब चेंज हो चुकी है। तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सो लेट्स सी। द एक्टिविटी ऑफ द प्रिमिटिव आफ्टर द सेटल लाइफ आर एज फॉलो। टू ग्रो ग्रेन्स एट द प्लेस वेयर द वाटर इज अवेलेबल, अब उसका काम क्या है, क्रॉप्स को ग्रो करना। ओके, एंड ये क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो करेगा यहाँ पे यूजुअली पानी की फैसिलिटी ईजिली मिल जाती है उसे। टू मेक द अर्थन पोट एंड स्मॉल बार्न फॉर स्टोरिंग एंड कलेक्टिंग ग्रेन्स, तो उसने छोटे छोटे बड़े बड़े मटके बनाने शुरू कर दिए जहाँ पे वो अपनी पूरे साल की एक साथ ग्रेन स्टोर करके रख सके। टू कलेक्ट द ग्रेन्स, फ्रूट्स, मीट, फिश एंड फूड, इन सबको कलेक्ट करने के लिए उसने ये सेटल लाइफ शुरू की। टू मेक द फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स लाइक स्पेड एंड हो, चीजल, सिकल एक्सेट्रा,
फिर उसने ये सब औजार रखना भी स्टार्ट कर दिया जो यूजुअली उसको ऑफकोर्स एग्रीकल्चर की एक्टिविटी में काम आएगा। आई एम सॉरी फॉर डैट, कभी कभी झोंके आ जाते हैं। नाउ गिव रीजन। नाउ ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। प्रिमिटिव मैन लिव इन नेचुरल केव्स। तो पहले जो कुदरती रूप से जो गुफा होती थी, इंसान पहले वहाँ पे रहता था। इन द अर्लियर टाइम प्रिमिटिव मैन लिव्ड अ नोमेडिक लाइफ। तो उसकी लाइफ नोमेडिक थी, डेट वी ऑल नो। दे यूज टू फाइंड प्लेसेज वेयर दे फाउंड एनिमल लाइक डियर, शिप, गोट एंड वाटर। जहाँ पे ये एनिमल जाते थे उनके पीछे ये लोग भी घुमा करते थे। Thus they stayed in the good and a large place where the stone, water, food are found। तो ये इससे यहाँ पे रुकना ज़्यादा पसंद करते थे जहाँ पे उनको बहुत सारे स्टोन्स मिले, ऑफकोर्स वुड मिले, एंड इवन वाटर भी एम्पल अमाउंट में हो। Here they lived in a natural caves to protect themselves from the animal and rain। तो इस तरह से उन्होंने गुफा में रहना शुरू किया ताकि उनको एनिमल्स हार्म ना पहुँचा पाए। ठंडी है, गर्मी है, एंड इवन रेनी सीजन होता है, तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने नेचुरल गुफाओं में रहना स्टार्ट कर दिया। ओके, सो हियर इज योर सेकेंड क्वेश्चन। प्रिमिटिव मैन हेल्प प्रिमिटिव मैन प्रिमिटिव मैन टाइम इज कॉल्ड द स्टोन एज। तो प्रिमिटिव मैन्स की एज को हम लोग स्टोन एज कहेंगे। सो लेट्स बिगिन द आंसर। द लाइफ ऑफ द प्रिमिटिव मैन वॉज एसोसिएटेड विद द स्टोन। सो स्टोन बेसिकली उनके लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था। देयर इम्प्लीमेंट्स एंड वेपन्स वेर मेड अप ऑफ स्टोन। आपको ये सब स्टोन से बनते थे। देयर केव्स वर ऑल्सो मेड अप ऑफ स्टोन। एग्री भाई, सब कुछ तुम्हारा स्टोन से ही होता है। दिस प्रिमिटिव मैन वेर एसोसिएटेड विद द स्टोन टेक्नोलॉजी। तो उनके यहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती थी बेसिकली वो स्टोन से ही रिलेटेड होती थी। सो देयर टाइम इज नोन एज द स्टोन एज। वेरी स्मार्ट आंसर आई कैन से, है ना। पहले पॉइंट में उन्होंने ये बताया कि उनकी लाइफ स्टोन से एसोसिएट थी। सेकेंड पॉइंट, उनके टाइम पे जो टूल्स और वेपन थे वो भी स्टोन से बनते थे। नंबर 3, वो लोग जिस गुफा में रहते थे वो भी स्टोन से होती थी। नंबर 4, तो उनकी सारी टेक्नोलॉजी स्टोन बेस्ड थी, इसलिए उनकी एज को स्टोन एज कहा गया है। आई थिंक ये बहुत ही भले आंसर था बड़ा दिखता है बट बहुत क्यूट और ईजी टू रिमेम्बर है। नाउ जस्ट ए मिनट है, मैं थोड़ी चेयर एडजस्ट कर लूँ। यस, ओके डन। सी यहाँ पर ये लोगों ने मैंने 2 शॉर्ट नोट पूछे हैं। द फर्स्ट वन इज मेहरगढ़ एंड द अनदर वन इज द चेंजिंग एनवायरनमेंट। सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट द मेहरगढ़। सो मेहरगढ़ क्या है, लेट अस क्रैक। मेहरगढ़ में भी कंसिडर टू बी द ओल्डेस्ट विलेज ऑफ द एंशिएंट इंडिया। सबसे पुराना अगर कोई विलेज है तो वो है मेहरगढ़। फार्मिंग ऑफ बार्ली एंड वीट स्टार्टेड फ्रॉम हियर। सो बार्ली और वीट की जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो यहीं से शुरू हुई थी। दे रियर शीप एंड गोट। सो बेसिकली ये एनिमल्स हैं उनको डोमेस्टिक करने के लिए। देन दे डिड फार्मिंग एंड स्टोर ग्रेन्स। ओके, सो उन लोगों ने फार्मिंग शुरू की, देन उन लोगों ने ग्रेन्स स्टोर करते थे वो लोग। बोन्स ऑफ एनिमल्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड हियर। जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स के बोन्स पाए गए। दे लिव्ड इन अ रेक्टेंगुलर हाउसेस। तो उनके हाउस का जो स्ट्रक्चर था वो रेक्टेंगुलर टाइप का होता था। स्मॉल बर्न्स हैव बीन फाउंड इन देज हाउसेस। तो ऐसी छोटी छोटी जगह होती थी इनके घरों में जहाँ पे वो लोग यूजुअली इस अपने जो फूड ग्रेन्स है उसको स्टोर किया करते थे। अकॉर्डिंग टू द एविडेंसेस फाउंड इन द मेहरगढ़, दे ऑनर द डेड बाय बरिंग देम। सो जैसे आज के टाइम में क्या होता है, जैसे हम लोग अंतिम संस्कार करते हैं, एक विधि विधान से सब काम करते हैं, इसी तरह से उनके टाइम पे भी अगर कोई मर जाता है तो वो भी सब ये जो परंपराएं थे वो फॉलो करते थे। Many such evidences are found. Evidences has been found at one place that the goat has also been buried along with the man. I think ये तो कुछ ज़्यादा हो गया है। सी एक ऐसा इंसिडेंट भी पाया गया है जब यूजुअली इंसान जो था उसकी बकरियों को भी साथ में जला दिया इंसान के साथ। तो आई थिंक ये तो क्रूअल्टी हुई अगर हम लोग आज मॉडर्न टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। दिस सजेस्ट दैट देयर बिलीव दैट देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर डेथ, है ना। वो अभी शायद पुनर्जन्म में, स्वर्गलोक, नरकलोक में, इन सब चीज़ों में वो भी लोग भी बिलीव किया करते थे। नाउ फ्रेंड्स, दिस इज समथिंग वेरी डेंजरस थिंग, दैट इज द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ओके, सो मैं स्ट्रेट अवे एक्सप्लेनेशन पार्ट पे जाता हूँ। ओके, आई एम जस्ट कीप सिटिंग फॉर 5 सेकेंड। आप वीडियो को इधर पॉज करोगे
और ये पूरा रीड कर लो। आई थिंक मेरी इमेज को मैं कुछ ऐसी जगह एडजस्ट करता हूँ जहाँ आपको डिस्टर्बेंस ना हो। एनी हाउ आप एटलीस्ट इतना तो रीड कर ही सकते हो। आई गेस सबने रीड कर लिया होगा, सो लेट्स बिगिन। ओके, सो हियर इज योर फर्स्ट पॉइंट। आज से कुछ 12,000 साल पहले पूरी धरती का जो एटमॉस्फेयर था उसमें हमको कुछ चेंजेस देखने को मिले। ओके, पहले पॉइंट में आपको ये एक्सप्लेन करना है। इन सेकेंड पॉइंट आपको ये बताना है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है बर्फ़ पिघलती है, सो बहुत सारे घास के मैदान अवेलेबल हो जाते हैं एंड इस तरह से बहुत सारा वेजिटेशन ग्रो होना शुरू कर देता है बराबर पूरी दुनिया में। थर्ड पॉइंट में आपको ये दिखाना है कि जैसे जैसे घास और ये सब चीज़ें आने लग गई तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स के नंबर बढ़ने लगे, स्पेशली लाइक डियर, शिप, गोट बराबर। इन सब के नंबर भी ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगे। तो प्रिमिटिव मैन को भी इसका बेनिफिट मिला। उसने भी एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी किया। ओके, और इन्होंने अपना थोड़ा मेंटल डेवलपमेंट किया और इनको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। सिक्स पॉइंट आपको ये बताता है कि जैसे वो घास के कांटेक्ट में आए ट्री के, उन लोगों ने भी थोड़ा सा एग्रीकल्चर में चीज़ें आजमानी शुरू कर दी बाय यूजिंग स्टोन। अच्छा, स्टोन्स का इस्तेमाल करते हुए मैन, वुमन और चिल्ड्रन जो है वो लोगों ने ग्रेन्स इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया एंड फिर धीरे 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 एग्रीकल्चर भी इंडिया में फैलने लगा। पॉइंट नंबर 9, इवन ये लोग क्रॉप ग्रो करने के लिए भी स्टोन्स का यूज़ कर रहे हैं। 10 नंबर, ये लोग अपनी जो ग्रेन्स था वो नदी किनारे ही बचा देते थे ताकि उनको पानी इजीली मिल सके एंड वो अपने घर भी अच्छे से बनाते थे जिसमें वो लोग मड, थैच एंड अदर मटेरियल नियर बाई एरिया, आसपास की जितनी भी चीज़ें थी उन सबको मिला के ये लोग अपना घर बनाते थे। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि इंसान नोमेडिक लाइफ से सेटल लाइफ में शिफ्ट हो गया। ओके, एंड उसका पहला कंपेनियन था डेट इज द डॉग। एंड इसके अलावा उसको बहुत सारे एनिमल्स के साथ उसकी अच्छी खासी हेल्प लिया था वो, जहाँ पे वो अपनी फार्मिंग की सारी रिक्वायरमेंट इन एनिमलों से पूरी कर रहा था, स्पेशली शीप, गोट, बफेलो, काउ एंड ऑफकोर्स इससे उनको मिल्क भी मिलता था। दिस एनिमल प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। ओके, सो ये जो है वो उनको वाइल्ड एनिमल से ही बचाया करते थे। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग और ये सेशन बहुत ही सुपर्ब लगा होगा। I hope you guys are taking care of yourself, and very soon I am going to bring chapter number 3 and chapter number 9 for you. Thank you very much. Have a nice day.